Hello students, once again welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and in this lecture we are going to solve the important MCQs on inverse trigonometric function for MSTCET. लास्ट लेक्चर में हमने अब तक 24 MCQs सॉल्व किए हैं. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर अगेन गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट 12 MCQs ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर MSTCET. All these MCQs are very important for this exam MSTCET. We will solve these MCQs using all the important formulas and all the important properties of inverse trigonometric functions. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 of inverse trigonometric function for MSTCET. So here this is the question number 25, and in this question I have to find the value of cos inverse of minus 1 by 2, cos inverse of minus 1 by 2 plus minus 2 sin inverse of minus 2 sin inverse of 1 by 2 plus 3 cos inverse of minus 1 by root 2 minus 4 tan inverse of minus 1. Okay, so this question depends on the principal value branch of all trigonometric function. So you know the principal value branch of all trigonometric function. जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसमें मैंने पहले ही लेक्चर में ऑल द प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलेज एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको समझाए थे. सो दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस टेबल में सारे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच दिखाए. तो अकॉर्डिंग टू दिस वी विल फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ऑल दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो कॉस इनवर्स माइनस 1 by 2 इंटर दिस कॉस इनवर्स लाइज इन 0 to pi. But here cos inverse negative number is there, therefore it will lie in second quadrant, pi by 2 to pi. So this will be pi minus pi by 3 minus 2. Now the next one is sin inverse of 1 by 2. So this is very simple, lies in the first quadrant. Principal value branch of sin inverse is minus pi by 2 to pi by 2. So here 1 by 2 is positive, therefore it will lie in 0 to pi by 2. So it is pi by 6 plus 3. Again cos inverse minus 1 by root 2 is negative in second quadrant like this. So it is pi minus pi by 4 minus 4. Tan inverse of minus 1, principal value branch of tan inverse is minus pi by 2 to pi by 2. But here minus 1 is negative, therefore it will lie in fourth quadrant, minus pi by 2 to 0. So it is minus pi by 4. So it is 2 pi by 3 minus pi by 3 plus 3 into 3 pi by 4 minus minus plus pi. So 2 pi by 3 minus pi by 3 is pi by 3 plus 9 pi by 4 plus pi. So it is 3 pi plus pi, 4 pi by 3 plus 9 pi by 4. So 16 pi plus 27 pi by 12, and this is equal to 43 pi by 12. So sum of प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ऑल दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज 43 पाई बाय 12. काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू मालूम होना चाहिए. सो ऑल दिस प्रिंसिपल वैल्यूज आर वेरी वेरी सिंपल, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, and this answer lies in the last option D. So this is the first question of inverse trigonometric function. Now we will solve the next question number 26. So see the next question 26 of inverse trigonometric function for MSTCET. तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26? See on the board, question number 26. I have to find the value of sin square of cos inverse 1 by 2 plus cos square of sin inverse of 1 by 3. So this is 26, in which I have to find the value of sin square of cos inverse of 1 by 2
plus cos square of sin inverse of 1/3. So which property or which formula can be used to find the value of this expression? So it is better to find, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन इन्वर्स आना चाहिए, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कॉस इन्वर्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया है, इसलिए पहले हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर इसको थीटा कंसिडर करेंगे, इट इज साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा है कॉस इनवर्स 1/2, थीटा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो इट इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, कॉस स्क्वायर इसे थीटा कंसिडर कीजिए, साइन इनवर्स ऑफ 1/3, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 1/3। सो देखिए 1 माइनस, नाउ इट इज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 का स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। सो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होगा 1/2, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा, सो इट विल बी स्क्वायर, प्लस 1 माइनस, यहाँ पे वैसा ही होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3 होगा, लेकिन साइन का स्क्वायर है तो 1/3 का भी स्क्वायर होगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व नाउ, काफ़ी सिंपल हो गया है। सो इट इज़ 1 + 1 2 माइनस 1/4, माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस 1/9। नाउ दिस इज 2 माइनस 13/36, so it is 72 minus 13/36 which is equal to 59/36. So 59/36 is the answer to this question number 26 of inverse trigonometric function, and this 59/36 is in the second option. So second option B is correct to this question number 26. Now see the next question 27, उसका सॉल्यूशन देखिए आप। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, आप भी इन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज कीजिए और कुछ सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, and in this question number 27 I have to find the value of sin of 3 sin inverse of 1/5। साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स ऑफ 1/5 की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करने की है। साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स ऑफ 1/5, तो इस एक्सप्रेशन की यानी साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स ऑफ 1/5 की वैल्यू मैं किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो साइन इनवर्स ऑफ 1/5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल होता है। सो साइन इनवर्स ऑफ 1/5 को मैं थीटा कंसिडर करता हूँ, बिकॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इटसेल्फ अ एंगल। सो लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/5 थीटा, so my sin theta will be equal to 1/5। सो इसको मैंने थीटा कंसिडर किया है साइन इनवर्स ऑफ 1/5 को। सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा। दिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा। एंड यू नो द वेरी वेल फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ 3 थीटा इज ट्रिपल एंगल फॉर्मूले के 3 फॉर्मूले, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा। ध्यान में रखिए साइन 3 थीटा इज इन टर्म्स ऑफ साइन, एंड साइन 3 थीटा इज व्हाट 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सो 3 इंटू साइन ऑफ थीटा इज 1/5 माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब थीटा इज 1/5 का क्यूब कितना होगा 1/125। सो इट इज 3/5 माइनस 4/125। सो मल्टीप्लाइंग बाय 25 into 3 75 minus 4 71/125 will be the answer to this question, and this is in the first option A. So this is the solution of this question number 27. So students, using the properties inverse trigonometric function की इस तरह की प्रॉपर्टीज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। इन क्वेश्चंस के साथ में आपको अदर क्वेश्चंस
भी सॉल्व करने पड़ेंगे। जो कुछ आपके पास MST CET का बुक है उसमें से आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सो दिस इज़ द 27. नाउ सी द नेक्स्ट 28 of inverse trigo 28. And in this question number 28 I have given if sin inverse of x by 5 plus cosec inverse of 5 by 4 equal to pi by 2 है, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करने की। sin इनवर्स ऑफ x by 5, sin इनवर्स इक्वेशन दिया है sin इनवर्स ऑफ x by 5 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 5 by 4 equal to pi by 2, cosec inverse of what, 5 by 4 is equal to pi by 2, then I have to find this unknown value of x. So here this is very simple question, इसको भी मैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। So first I will transfer this cosec inverse in the right hand side, left hand side में बचेगा sin inverse of x by 5, so it will be pi by 2 minus cosec inverse of 5 by 4. Now I have one identity, sec inverse x plus cosec inverse x equal to pi by 2. I have the identity sec inverse x plus cosec inverse x equal to pi by 2. So pi by 2 minus cosec inverse x, देखिए sec inverse x plus cosec inverse x क्या होता है, pi by 2. So this pi by 2 minus cosec inverse x को मैं लिख सकता हूँ sec inverse x. So this is sin inverse of x by 5 is equal to pi by 2 minus cosec inverse x is sec inverse x, so it is sec inverse of 5 by 4, where x is greater than or equal to 1, less than or equal to -1. ओके, सो इस तरह की ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है। अब इस सेक इन्वर्स को मैं कॉस इन्वर्स में ही लिख देता हूँ। सो ये इसका कॉस इन्वर्स होगा 4/5। अब साइन इन्वर्स ऑफ x by 5, कॉस इन्वर्स को साइन इन्वर्स में लिख सकते हैं। कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 16/25। So like this is sin inverse of x by 5 is equal to sin inverse of 9/25 का स्क्वायर रूट 3/5। नाउ बोथ साइड में sin इनवर्स है, सो x by 5 must be equal to 3/5 and by comparing we have the value of x equal to 3। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई है 3 and this is the correct answer which is in the last option D। Okay students, so this was the 28. Now we will solve the next question 29 of inverse trigonometry for MHT CET. So see the question number 29, see the question number 29, very important question is this is the question number 29, and in this question I have given if 3 sin inverse of 2x upon 1 plus x square minus 4 cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square plus 2 tan inverse of 2x upon 1 minus x square is equal to pi by 3, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करने की। सो पहले मैं गिवन इक्वेशन लिख लेता हूँ, दैट इज 3 sin inverse of 2x upon 1 plus x square. Next term is minus 4 cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, and the third term is 2 tan inverse of 2x upon 1 minus x square is equal to given क्या है, pi by 3. So I have to find the value of x. So if you carefully observe all these 3 terms, sin inverse of 2x upon 1 plus x square, cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square, and tan inverse of 2x upon 1 minus x square, all these are equal to what, ये तीनों फार्मूले हैं 2 tan inverse के। 2 tan inverse is equal to sin inverse of 2x upon 1 plus x square, 2 tan inverse x is also equal to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square, and 2 tan inverse is also equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square। तो ये सभी 2 tan inverse x है। So this is 2 tan inverse of x,
this is also 2 tan inverse of x, and this is also 2 tan inverse of x. So this is 2 tan inverse x, 2 tan inverse x, and this is also 2 tan inverse of x. Now see, my question will become 3 into 2 6 tan inverse x minus 4 into 2 8 tan inverse x plus 2 into 2 4 tan inverse x is equal to pi by 3. सो 6 प्लस 4 10 माइनस 8, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 3. काफ़ी सिंपल हो गया है क्वेश्चन. नाउ इट इज tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 6 tan 30 1 by root 3. So 1 by root 3 is the answer to this question, which is in the second option. So option B is correct. So this was the 29. Now we will solve the next question number 30 of inverse trigonometric function for MST CET. So students, you can also try to solve these questions. अगर आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखता है तो वीडियो पॉज कीजिए और आप भी खुद सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो. सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री. सो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है. सी द क्वेश्चन नंबर 30, साइन इन्वर्स ऑफ 1/3 प्लस साइन इन्वर्स ऑफ 2/3 इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ एक्स. तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई. इसके भी 4 फार्मूले मैंने दिए थे, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई एंड कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई. तो इस चारों फार्मूले को यूज़ करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती है, बट फॉर दिस MST CET एग्ज़ाम कोई कंडीशन हमें देखने की नहीं है, हमें डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करने का है. सो गिवन इक्वेशन इज साइन इन्वर्स ऑफ 1/3 प्लस साइन इन्वर्स ऑफ 2/3 is equal to sin inverse of x, and I have to find this value of x. Okay, so I will use sin inverse x plus sin inverse y. तो क्या फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूज़ करने का है. सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आई विल राइट साइन इनवर्स ऑफ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई. सो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स यानी 1/3 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 2/3 का स्क्वायर, 4/9 प्लस y यानी 2/3 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो 1/3 का स्क्वायर 1/9 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स. सिंपल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेने का है. साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. तो इस तरह से इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं. तो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है. सो इट इज़ 1/3, तो ये बनेगा √5/3 प्लस 2/3 इंटू 8 यानी 2√2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स. एंड लाइक दिस इज साइन इनवर्स ऑफ √5 प्लस 4√2/3 इंटू 3 9 is equal to sin inverse of x, and this is the value of x. ये x की वैल्यू है √5 प्लस 4√2/9, √5 प्लस 4√2/9 which is in the third option C. So option C is correct to this question number 30. So सभी फार्मूलेज, सभी प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान में रखने का है. तो बार बार इन फार्मूलेज को, प्रॉपर्टीज़ को आप रिवाइज कीजिए और इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये फार्मूले आप रिमेंबर कर सकते हो. नाउ द डिफरेंट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 31, एंड हियर आई हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1/3. इस साइन इनवर्स 2x प्लस 1/3 का मुझे डोमेन फाइंड आउट करने का है. वेरी नाइस क्वेश्चन. सो माई गिवन फंक्शन इज साइन इनवर्स ऑफ 2x plus 1/3. I have to find the domain of this inverse trigonometric function. तो डोमेन भी मैंने टेबल में दिया था
स्टार्टिंग का ही अपना फॉर्मूलेस का लेक्चर था, उसमें फर्स्ट पॉइंट था डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसमें पूरे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स की डोमेन एंड रेंज मैंने एक्सप्लेन की थी। सो व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स? साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 to 1। साइन इनवर्स का डोमेन है -1 to 1 एंड रेंज है -π/2 to π/2। सो as the domain of sin inverse x is -1 to 1, so this 2x plus 1 3 will belongs to -1 to 1, less than or equal to 1, greater than or equal to -1, less than or equal to 1, greater than or equal to -1। तो इसी को सॉल्व करने का है, वेरी सिंपल। 2x plus 1 will be less than or equal to 3, greater than or equal to -3, so this 2x will be less than or equal to 2, greater than or equal to -3 minus 1 2 minus 3 minus 1 minus 4, and dividing by 2 x will be less than or equal to 1, greater than or equal to -2. So x belongs to -2 to 1, closed interval. So this is the domain of this sin inverse of 2x plus 1/3 minus 2 to 1, and this is in the second option, B option correct है। So this is the solution of 31. Now see the next question 32. This is also very simple question, काफ़ी simple question है 32, very simple question 32। See the question number 32, आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सो दिस इज़ 32, डिपेंड्स ऑन द सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन पे एक क्वेश्चन डिपेंड है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन है, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन है x इक्वल टू a साइन थीटा। x इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट करेंगे हम? a साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स आप इन एक्सप्रेशंस और उनके सब्सटीट्यूशन को एक बार लिख लीजिए और उसको रिमेंबर कीजिए। सो फॉर द एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आई हैव द सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू व्हाट? a साइन थीटा। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखिए। सो देयरफॉर दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ x को मैं लिखूँगा a साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस फिर से x है, x यानी a साइन थीटा, उसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा, a कॉमन निकलेगा, उसका रूट a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, उसका रूट मुझे मिलेगा कॉस थीटा। सो दिस a विल गेट कैंसल एंड दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, साइन बाय कॉस tan थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होगा? थीटा होगा। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा एंड दिस थीटा बिलोंग्स टू, यहाँ से मुझे थीटा लिखने का है तो यहाँ पे थीटा क्या मिलेगा? x अपॉन a इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा। सो थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ व्हाट? x अपॉन a। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इज इन द थर्ड ऑप्शन C। सो ऑप्शन C इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन आज के काफ़ी थोड़े छोटे भी हैं। सो दिस क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी important. So now students, after the completion of 32, now move to the next question number 33 of this lecture, inverse trigonometric function for MSTCT. So 33 को सॉल्व करते हैं। सी द क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 33 में tan ऑफ π/4 प्लस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ a/b प्लस tan ऑफ π/4 माइनस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ a/b। So this is 33 and in this question I have to find the value of tan of π/4 plus 1/2 into cos inverse of a/b plus tan of π/4 minus 1/2 into cos inverse of a/b। तो यहाँ पे भी प्रॉपर सब्सटीट्यूशन करके हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पे मुझे कॉमन एंगल दिख रहा है,
1/2 cos inverse of a by b, 1/2 cos inverse of a by b. So for this common term I will substitute theta. I will put 1/2 into cos inverse of a by b, and this 1/2 into cos inverse of a by b, इसको मैं थीटा कंसिडर करता हूँ. पुट 1/2 into cos inverse of a by b इक्वल टू थीटा. ओके, तो यहाँ से मुझे मिलेगा दिस विल cos इनवर्स ऑफ a by b विल बी इक्वल टू 2 थीटा. ओके, तो पहले हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो मुझे ये एक्सप्रेशन इस तरह से मिलेगा, tan of π/4 प्लस थीटा प्लस दिस विल बी tan of π/4 माइनस थीटा. तो इसके फॉर्मूले आपको याद होंगे, tan of π/4 प्लस थीटा एंड tan of π/4 माइनस थीटा यूजिंग tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी. इसमें tan π/4 1 है, तो इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b. tan ऑफ π/4 इज 1. तो इसको सॉल्व करते हैं. सो 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर होगा, ये 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर होगा. सो प्लस 2 tan थीटा माइनस 2 tan थीटा कैंसिल होगा, 2 कॉमन निकलेगा और ऊपर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन, ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा. कॉस ऑफ 2 थीटा के कितने फॉर्मूलेज है, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सेकंड इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, थर्ड इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फोर्थ वन इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो दिस इज 2 अपॉन cos ऑफ 2 थीटा. ओके, बस क्वेश्चन मिल गया है. सो 2 अपॉन cos इनवर्स ऑफ a बाई बी इज 2 थीटा. तो cos ऑफ 2 थीटा क्या होगा, cos ऑफ 2 थीटा क्या होगा यहाँ पे, a बाई बी. सो इट इज a बाई बी, बी ऊपर जाएगा, 2b बाई a, 2b बाई a विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन विच इज इन द सेकेंड ऑप्शन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो यूजिंग दिस प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन we have solved this question. So this was the 33. see the solution carefully. अगर आप को अच्छी तरह से इसको समझना है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं रिपीट. सो दिस वाज 33. नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन 34 of inverse trigonometric function. So see the solution of 34. This is also very simple question. 34 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 34 में. So I have cot inverse of 1 by a plus cot inverse of 1 by b plus cot inverse of 1 by c इक्वल टू 0 होगा. तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. cot inverse of 1 by a प्लस cot इनवर्स ऑफ 1 बाई बी प्लस cot इनवर्स ऑफ 1 बाई सी इक्वल टू 0. काफ़ी सिंपल है. प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, tan इनवर्स cot इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स. सो cot इनवर्स ऑफ 1 बाई ए को मैं tan इनवर्स ए लिख सकता हूँ. दिस इज tan इनवर्स बी, दिस इज tan इनवर्स सी. सो इट इज़ माइनस tan इनवर्स सी. ओके, अब यूज़ करेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूज़ करेंगे. सो यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. सो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी इट विल बी tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस tan इनवर्स ऑफ c इज tan इनवर्स ऑफ माइनस c. सो ये tan इनवर्स ए बी tan इनवर्स, सो a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस c. ये दोनों इक्वल हो गए तो बस इसे सॉल्व करने का है. a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी. सो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू व्हाट
a plus b plus c is equal to what? ABC. So ABC is the answer to this question. कितना simple question है. ABC is the answer to this question which lies in the first option. So first option is correct. So this was 34. Now see the next question number 35. 35 को हम देखते हैं. All the questions are very important questions है. Properties use करके हम इसको solve कर रहे हैं. So see the next 35. ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. 35 को आप देखिए. In which I have to find the value of sin of tan inverse of 1 minus x square upon 2x plus cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. Sin of tan inverse of 1 minus x square upon 2x plus cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. So cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square, if we put x equal to tan theta, यहाँ पे देखिए अगर x equal to tan theta सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So that will be cos of 2 theta 2 tan inverse of x. तो डायरेक्ट की फॉर्मूला है cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square क्या होता है? 2 tan inverse of x होता है. ओके, सो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का है x इक्वल टू वॉट? tan थीटा. तो हर जगह पे ही भी tan 2 थीटा का ही फॉर्मूला है लेकिन रेसिप्रोकल में है. सो इट इज tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा. ये तो डायरेक्ट रिजल्ट मालूम है लेकिन अभी यहाँ पे लिखेंगे हम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ओके, सो दिस इज साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ. अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज tan 2 थीटा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. बट दिस इज द रेसिप्रोकल. tan 2 थीटा का tan में जो फॉर्मूला है उसका ये रेसिप्रोकल है. सो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot. सो इसको हमें लिखना पड़ेगा cot ऑफ 2 थीटा. ओके, प्लस दिस इज cos इनवर्स ऑफ, वी नो दिस इज cos ऑफ 2 थीटा. cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला है. सो दिस इज साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot थीटा. तो इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ cot थीटा इज व्हाट? tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. क्योंकि यहाँ पे cot है तो हमें यहाँ पे tan लाने का है बाहर. tan इनवर्स है, tan इनवर्स ऑफ tan की प्रॉपर्टी यूज़ करने की है. दिस इज़ वेरी सिंपल. इसका काम हो चुका है. cos इनवर्स ऑफ 2 थीटा इज 2 थीटा. सो दिस इज साइन ऑफ tan इनवर्स थीटा इज थीटा. सो इट इज पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा प्लस ए 2 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस 2 थीटा विल गेट कैंसल. साइन ऑफ पाई बाय 2 कितना होगा? 1. So 1 is the answer to this question number 35 of inverse trigonometric function for MSTCT. Very simple question. 35 का आंसर 1 which is in the first option. फर्स्ट ऑप्शन में 1 है, that is the correct. Now see the next question number 36 of inverse trigonometric function for MSTCT. लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी ये लास्ट क्वेश्चन है. एंड दिस इज ऑल्सो द लास्ट लेक्चर ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए. सो सी द नेक्स्ट 36. इन सभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के आप वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. माय चैनल जे मैथ गुरु, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, प्ले लिस्ट देखिए, उसमें आपको ये सभी वीडियोज़ दिखेंगे. MSTCT 2021 सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे. ओके, 36 क्या दिया है इक्वेशन? वेरी नाइस, बेस्ट क्वेश्चन है. साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2. काफ़ी स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ये रिजल्ट को मैंने अपना जो लेक्चर हुआ था फॉर्मूलेस का इन्वर्स का फर्स्ट, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने ये पॉइंट लिख के दिया है. अगर 3 साइन इन्वर्स की सम 3 पाई बाई 2 है बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स इज पाई बाई 2. साइन इन्वर्स पाई बाई 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता.
तीनों साइन इनवर्स अगर 3π/2 है तो ईच साइन इनवर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, π/2। काफ़ी सिंपल रिजल्ट है। ऐसा कॉस इनवर्स का भी रिजल्ट था, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z अगर 3π है तो हर एक कॉस इनवर्स पाई होता है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z 3π/2 होता है, तो हर एक साइन इनवर्स π/2 होता है। सो एज दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज 3π/2। तो हमें पहले से पता है ईच साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y साइन इनवर्स z इक्वल हो गए, हर एक की वैल्यू कितनी होगी, π/2, एज साइन इनवर्स बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। So it means value of x, y and z is also equal, that is equal to sin of π/2, sin of π/2 यानी 1, and I have to find this value x to the power 100 plus y to the power 100 plus z to the power 100 plus 9 upon x to the power 101, right, plus y to the power 101 plus z to the power 101. So 1 1 1 1 1 1 plus 9 by 1 plus 1 plus 1. So 3 by 9 by 3, 3 plus 3, कितना आंसर आएगा, 6. So 6 is the correct answer to this question, which is in the third option C. Okay students, तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्व किए अलॉन्ग विद द important properties and formulas and important results. So students, now we will stop here. Next lecture में हमें देखने का है अपना लास्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स 1, लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके हम फार्मूलेज यानी सिनॉप्सिस, जो कुछ कंसेप्ट है, टर्मिनोलॉजीज है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और उस पर भी हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि MSTCT एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको LPP का मिलेगा ही मिलेगा। सो दो मार्क्स भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सो स्टूडेंट्स, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द LPP। ओके बाय।